Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are diving in another session over active and passive voice. So previously we talked over simple past tense, right? So in that we'll be looking forward to the exercise which I gave you yesterday. Okay, so firstly we'll be going with that. We can match those who have submitted the answers and those who haven't submitted or you wish to write, you can write in the correct answers. Okay. So the first sentence was she wrote a letter. It was to be converted into passive form. So she wrote a letter. What will be the passive voice of this? Can you guess the answer? She wrote a letter. So as I told you in passive voice, object is important. So here a letter is an object. So it will come as subject in the beginning. Yes, I have taken the water. A letter was written by her. That is correct. Okay. A letter was written by her. That's correct. So a letter is taken as primary thing in this statement. So she wrote a letter. It is converted. Yes. So second sentence, first sentence was she wrote a letter. The correct answer would be a letter was written by her. Match it. And second was they cleaned the classroom. They cleaned the classroom. So, what will be the passive form of this? Yes, Anamikaji, that's correct. The classroom was cleaned by them. Match it, everyone. So, the passive form for this statement, they cleaned the classroom, would be the classroom was cleaned by them. Next, he repaired the bike. So, he repaired the bike. What will be the passive form of this? Write in comment section. The bike is an object. Yes, the bike. The bike was repaired by him. Correct, Deepaji and Anamikaji. The bike was repaired by him. Next, the teacher praised the student. The teacher praised. The teacher praised the student. The passive form of this statement would be yes, the student was praised by the teacher. Correct. The student was praised by the teacher. Next, we watched the movie. We watched the movie. We watched the movie. Change into passive voice. The movie is an object here and it is in simple past, so you will be adding was or were according to the movie. Was will be added. Correct. So you are writing the answer that is the movie was watched by her. Correct. No, we watched the movie. Sorry, not she. It is we watched the movie. So the movie was watched by us. That is correct, not her. Okay. The movie was watched by us. That's correct, Mayuji. Next, she opened the window. She opened the window. She opened the window. So here the window is an object and according to the window, we'll be using what? Was or what? Because yes, the window is single. So the window was opened by her. Correct. Correct. Now they sold the house. They sold the house. They sold the house. And Ankaji is doing the house was sold. Yet in this sentence you can emphasize over them because it is mentioned. So the house was sold by them. Can be emphasized. The house was sold by them. Correct. Next, the police caught the thief. The police caught the thief. The police caught the thief.
The police caught the thief. Correct passive form for this would be the thief was caught by the police. The police. Right? Correct. Next, he baked a cake. He baked a cake. He baked a cake. Deepaji, you're doing well. Yes, correct. Well done. A cake. A cake was baked by him. That's perfect. A cake was baked by him. Nice. Yes. First letter will be capital letter and at the end full stop. We played cricket. Next, we played cricket. We played cricket. We played cricket. So the passive voice for this would be the same, like you're writing Anamika ji and Deepa ji. Cricket was played by us. Cricket was played by us. That's correct. Now, next, these were the translations. Like first one was कल पुरस्कार दिया गया था. कल पुरस्कार दिया गया था. तो यहाँ पे बाई वाला केस नहीं. कल पुरस्कार दिया गया था. Yes, you're doing well. Anamika ji and Deepa ji are going so fast. Well done. So the award was given yesterday. Correct. Atul ji, you have done the award was given tomorrow. The answer which you submitted. So that was incorrect. Kal bita hua kal. Okay. So the award was given yesterday, not tomorrow. Yesterday I was awarded. इसका सेंस ये होगा मैम जी, कल मुझे अवार्ड दिया गया था और कल पुरस्कार दिया गया था, मतलब पुरस्कार की बात हो रही है. पुरस्कार यहाँ पे प्राइमरी है. आपने यहाँ पे आय को प्राइमरी बनानी है. ठीक है, पुरस्कार को प्राइमरी करना था. तो द अवार्ड वाज गिवन यस्टरडे. दैट्स करेक्ट. लता मंगेशकर के द्वारा गाना गाया गया था. लता मंगेशकर के द्वारा गाना गाया गया. यस. द सॉन्ग वाज sung by Lata Mangeshkar. Atul ji has done singing was done by Lata Mangeshkar. That's also correct. The song was sung, not sang. Mayurji, it will be sung, S-U-N-G. The song was sung, third form. Sung by Lata Mangeshkar. Correct. Third, सड़क पर नया पुल बनाया गया था. सड़क पर नया पुल बनाया गया था. नया पुल. Yes, new bridge was constructed on the road. Or you can say a new bridge or the new bridge. Okay, article can be added. A new bridge was constructed on the road. Or the new bridge was constructed on the road. The bridge was built on the road. नया नया था तो नया के लिए न्यू लगा सकते हैं. The new bridge was constructed on the road or built on the road. That's correct too. Okay. Yes, I told you the difference between build and construct. Formally, if we are speaking, then we use construct, and for physical stuff, which is not in the case of formal, in all cases we can go with build. Build. So third form for build will be built. So in this case, both can be possible, right? Especially when you are talking about the road was being constructed, it means you are talking in formal, right? Formal. Now next, बच्चे को उसके पिता द्वारा डांटा गया था. बच्चे को उसके पिता द्वारा डांटा गया था. बच्चे को उसके पिता द्वारा डांटा गया था. The children were scolded by his father. दीपा जी, yes. The child was scolded by his father. Yes, that's correct. यहाँ बच्चे से मतलब एक बच्चा है. अगर ये होता बच्चों को उसके पिता द्वारा डांटा गया था, तब कर लेते द चिल्ड्रन वर स्कॉल्डेड बाय हिज फादर. देयर फादर हो जाता, हिज नहीं होता, देयर हो जाता क्योंकि बच्चे हैं तो बहुत सारे देयर. ठीक है. बट यहाँ पर, यहाँ सुनिए ध्यान से, बच्चे, बच्चे का सेंस यहाँ पर एक सिंगुलर है. बच्चों को अगर होता, ऐसा होता बच्चों को उसके पिता द्वारा डांटा गया था, तो वहां पर द चिल्ड्रन है.
हालांकि अगर आप द चिल्ड्रन लगा रहे हैं तो यहाँ पे वर आएगा मयूर जी, ठीक है। दीपा जी आपने सही किया था, बट वहां पर आपने देर नहीं लगाया, ठीक है। अगर चिल्ड्रन लगाएंगे तो। वैसे यहाँ बच्चे को है तो यहाँ पे आ जाएगा सही। करेक्ट करेक्ट ट्रांसलेशन इज वुड बी द चाइल्ड वॉज स्कोल्डेड बाय हिज फादर। अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं बच्चा को डांटा गया, है ना। बोलने में आता है ना, बच्चे को पिता पिता द्वारा डांटा गया, मतलब एक बच्चे की बात हो रही है। द चाइल्ड या फिर अ चाइल्ड, द चाइल्ड वॉज स्कोल्डेड बाय हिज फादर। नेक्स्ट, किताब एक लेखक के द्वारा लिखी गई थी। किताब एक लेखक के द्वारा लिखी गई थी। यस मयूर जी, अब आपने ठीक किया है, वर्ड लगा सकते हैं उसमें चिल्ड्रन के साथ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बच्चे का सेंस था, तो चाइल्ड। द बुक वॉज रिटन बाय अ राइटर। करेक्ट, द बुक वॉज रिटन बाय अ राइटर। किताब एक लेखक के द्वारा लिखी गई। द बुक वॉज रिटन बाय अ राइटर या एन ऑथर, दैट्स करेक्ट। एन ऑथर या अ राइटर। यस, दैट्स करेक्ट। Perfect, fine. So this was the thing we had done yesterday in simple past tense. अब simple past tense में मैंने बताया था कि एक चीज और रह जाती है। उस चीज को समझ लेंगे हम यहाँ पर अभी। सिंपल पास्ट में आपको जो पढ़ाया गया था टेंस, व्हेन यू वर टॉट सिंपल पास्ट टेंस, दैट इज आल्सो नोन एज पास्ट परफेक्ट, sorry, past indefinite tense, past indefinite tense. Okay, so we also learned the use of used to. Do you remember that? For example, मैं जाया करता था. Do you remember? What will be the translation for मैं जाया करता था? मैं जाया करता था. It is an active voice. It is a statement under simple past or past indefinite form. Yes, that's good. That's well. I used to go. Yes, that's correct. I used to go. बिल्कुल सही बात। तो हम जैसे यूज टू वाला हमने अभी नहीं किया है, राइट। अभी हमने जो भी किया था कि उसमें सेकंड फॉर्म था तो हमने वॉज लगा दिया। अब यूज्ड में भी अपने आप में सेकंड फॉर्म है, हम जानते हैं, पर यूज टू के केस में हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देना चाहूंगा, इसलिए पहले आपसे करवाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसे इनको करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई यूज टू प्ले मार्बल्स। आई यूज टू प्ले मार्बल्स। वुड यू बी एबल टू ट्रांस कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस? आई यूज टू प्ले मार्बल्स। कैन यू ट्राई? As I told you, in passive voice, we always go with object plus be, right? Object and after that be form. So in this case, what will you be doing? Used to play what? Marbles. Marbles. I used to play marbles. So अभी used to वाला केस है भाई। अब क्या करेंगे? Used to वाला केस है, अब be कैसे बनेगा? Be अब used to को अडॉप्ट कैसे कर पाएगा? Can you imagine? But yes, of course, this is of simple past. बट यहाँ पर क्या होगा? मार्बल्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दैट्स करेक्ट, ऑब्जेक्ट को ले लेंगे। मार्बल्स वर टू प्लेड बाय मी। नो, मार्बल्स वर यूज टू प्लेड बाय मी। नो, दैट्स इनकरेक्ट टू। मार्बल्स वर यूज टू प्ले बाय मी। नो, दैट्स इनकरेक्ट। देखेंगे, ये जो केस है ना आपका यूज टू वाला, यूज टू को कभी कभी मॉडल्स में भी पढ़ा दिया जाता है। जब आपको मॉडल पढ़ाया था तब मैंने बता दिया था सर कि मतलब एक एप्लीकेशन बेस्ड यूज है ये, कि मैं ये क्या करता था, मैं वो क्या करता था, तो वहां पर यूज पढ़ा जाता है। जबकि हम ये जानते हैं कि हाँ ऑफकोर्स ये सिंपल पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पर हमने यूज टू का यूज किया। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा कुछ आए जहां पर आपका यूज टू हो या टू बी हो या फिर नहीं इज टू हो, एम टू हो, आर टू हो या फिर नीड टू हो, ऐसे वाले केस में क्या करना है, जो भी आपके आए हैं उनके साथ ही बी को आपको सेटल करना है। अब यूज टू के साथ हम बी को सेटल करेंगे तो क्या हो सकता है केस? यूज टू के बाद बी को सेटल करेंगे तो यानी यूज टू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा केस? यूज्ड टू बी हो जाएगा, राइट। जब भी ऐसा, चाहे यूज टू आ जाए, चाहे नीड टू आ जाए, चाहे इज टू आ जाए, एम टू आ जाए, आर टू आ जाए, वॉज टू आ जाए, वर टू आ जाए, ऐसा कोई भी टू वाला केस आए ना, लास्ट में टू लगा हो, तो वहां पर क्या करना है, उसके जस्ट बाद बी लगा देना। सेटलमेंट कैसे होगा बी का? यूज टू बी, नीड टू बी, ऐसे, है ना। तो जैसे ये स्टेटमेंट है,
आई यूज टू प्ले मार्बल्स, अब क्या बनेगा ये? मार्बल्स यूज टू बी, मार्बल यूज टू बी प्लेड बाय मी, यहां पर वर्क की नीड ही नहीं। ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात ये है। यस, अभी अतुल जी ने सही किया है, मार्बल्स यूज टू बी प्लेड बाय मी। यहाँ पर वर्क की हमें यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसका एक रीजन ये है क्योंकि हमने यूज टू को एक अलग वे में लिया है। एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल्स में भी आ जाता है ये यूज टू, ठीक है। ओके, तो यूज टू के साथ हम सेटलमेंट करेंगे बी का, तो हम वहां पे यूज टू बी कर देंगे। मार्बल्स यूज टू बी प्लेड बाय मी, ठीक है। If this is clear, I'm asking another um, conversion. Let me know. She used to talk with him. She used to talk with him. Let me know the conversion for this. She used to talk with him. She used to talk with him. Do it fast, everyone. She used to talk with him. Talk with को talk with ही रहने देंगे, ओके। बाकी कीजिए, him का ही हो जाएगा, ओके। She used to talk with him. She used to, Deepa ji used to talk with him. So he used to be हो जाएगा, used to नहीं होगा, used to be talk with by her, बाकी आपका सही था। She used to talk with him, तो him को आप उठाएंगे, him का बनाएंगे क्या? सब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्ट होता है ही, राइट। तो ही लिख लिया आपने बिगिनिंग में, मैंने जो शी नहीं होता है हिम का सब्जेक्ट। तो ही, अब यूज्ड टू का क्या हो जाएगा? यूज्ड टू बी, और थर्ड फॉर्म तो लगता ही है, तो थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी था भी, नहीं था तो थर्ड फॉर्म टॉक का बनेगा, क्या हो जाएगा? टॉक्ड हो जाएगा। और विद तो आ जाएगा, विद बाई हर, ठीक है। इस तरह से अभी भी समझ में नहीं आया, कुछ और कीजिए तो समझ में आएगा। सभी लोग करेंगे, ठीक है, इसका जो बोल रहा हूँ मैं। आई यूज टू fly the kite. I used to fly the kite. I used to fly the kite. Fly. Third form of fly is flown. Remember that. Okay. I used to fly the kite. Atul ji has answered. Let me check how many of you are responding correctly. Atul ji has answered. Anamika ji, a kite. I used to fly the kite बोला था मैंने, उस हिसाब से करेंगे। मिनी जी, ओके। Okay, ma'am ji. I used to fly the kite. Do it fast, everyone. I used to fly the kite. I used to fly the kite. I used to fly the kite. I used to fly the kite का आंसर करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। I used to fly the kite. बस इतने लोग ही आंसर कर पाएंगे क्या? बाकी लोग? करेक्ट आंसर वुड बी द काइट used to be flown by me. करेक्ट, जितने लोगों ने आंसर किया है, द काइट used to be flown by me, दैट्स करेक्ट। ओके, समझ में आया आप लोगों को? If yes, let me know. If no, let me know. Did you understand or not? यूज टू में क्या करना है? बस सेटल करना है बी के साथ। मैंने आपको बताया था कल, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी मैंने, पता नहीं कितना आया नहीं आया, कि हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी फॉर्म आता है, और बी फॉर्म का ही लेना देना होता है टेंस से या फिर जो भी मॉडल्स है उससे, ठीक है। अब आप मॉडल्स भी कर सकते हैं अगर आपने यूज टू को समझाया तो। जैसे कैन है, अगर मैं बोलूँ कैन, जैसे ही कैन डू इट, कैन यू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, जैसे यूज टू किया वैसे कर सकते हैं क्या? सम मिस्टेक्स वर हैपनिंग बाय मी, इट्स ओके। समझ में आया या नहीं बताइए? यस सर, यस सर, ओके। दो लोगों का रिस्पॉन्स आया है, बताएंगे। इट कैन बी डन बाय हिम कर रहे हैं, ठीक है तो ही कैन डू इट का बताएंगे, ही कैन डू इट, ही कैन डू इट का बताएंगे, ही कैन डू इट। इट का सब्जेक्ट इट ही होता है,
ठीक है, ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, जैसे यूज टू में किया था वैसे ही कैन का बन जाएगा, कुड नहीं लगेगा। ही कैन डू इट बोला है, कुड कहाँ से आ गया? पास्ट में क्यों बना रहे हैं इसको? मैं तो पैसे बनवा रहा हूँ, पास्ट में क्यों ले जा रहे हैं? ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट निकालेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? इट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कैन को सेटल करना है किसके साथ? बी के साथ। हमेशा याद रखेंगे पैसिव वॉइस में बी का ही सेटलमेंट होता है। तो कैन के साथ बी को सेटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैन बी हो जाएगा, राइट? कैन बी, और थर्ड फॉर्म हमेशा आता ही आता है पैसिव वॉइस में, ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी। तो थर्ड फॉर्म आ गया डन, डू का डन हो गया, और बाई के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, उसको हम ऑब्जेक्ट रूप में बदल के करते हैं। तो इट कैन बी डन बाई हिम, दोज हु हैव डन दिस, दैट्स करेक्ट। इट कैन बी डन बाय हिम, ये उसके द्वारा किया जा सकता है। ओके, ऐसे ही मुझे बताइए, आप नीड टू का कर सकते हैं क्या? नीड टू का, फॉर एग्जाम्पल शी नीड्स टू, नहीं नहीं रुकिएगा, यस, शी नीड्स टू प्ले, शी नीड्स टू प्ले बैडमिंटन, शी नीड्स टू प्ले बैडमिंटन, तो बैडमिंटन से उठाएंगे यहाँ पर, शी नीड्स टू प्ले बैडमिंटन। बैडमिंटन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, नीड्स टू आपका मॉडल के रूप में आप ले लेंगे। ठीक है, बताएंगे जल्दी से। यहाँ पर सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर जैसा कुछ नहीं है, बस नीड्स टू आपका एज एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल के रूप में आ रहा है। तो आपने क्या किया? बैडमिंटन नीड टू बी प्लेड कर दिया, नो दैट्स इनकरेक्ट, नीड्स टू बी प्लेड होगा, नीड्स टू बी प्लेड। क्यों? बैडमिंटन भी तो सिंगुलर है ना भाई, चीजें वही की वही रहेंगी, चीजों को समझिए। हाँ, सिंपल प्रेजेंट का था हिस्सा ये, क्योंकि एस और यस लगा हुआ है, तो उसी हिसाब से सेटलमेंट होगा, बी ऑफ कोर्स लगेगा। पर ये बात याद रखेंगे, बैडमिंटन भी सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में अगर हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट में तो ऐसे हो जाता है, बैडमिंटन नीड्स टू बी प्लेड बाय हर। यहाँ पर इज एम आर का यूज नहीं किया है, रीजन क्या है? अगेन द रीजन इज सेम, बिकॉज नीड टू या नीड्स टू ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, दैट इज द केस। ओके, अगर मैं केवल बोलता सी नीड्स बैडमिंटन तो वो केस अलग होता, वहां पे बोलते बैडमिंटन इज नीडेड बाय हर, वो केस होता जो सिंपल प्रेजेंट का नॉर्मल लगता है। तो नीड्स में वहां पे नीड एक वर्ब के रूप में आया था, पर यहाँ पे नीड्स टू ये क्या है? अपने आप में एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल्स ले लेंगे। तो जहां पर भी आप देखें ना कि टू वाला सेंस बन रहा है, ठीक है, टू वाला, वो कुछ भी हो, भले ही नॉर्मल वर्ड्स भी हो सकते हैं जहाँ पे वर्ब यूज होंगे, उसको भी ऐसे कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू प्ले हॉकी, ये मॉडल नहीं है लेकिन हम एप्लीकेशन में बना लेंगे, आई लाइक टू प्ले हॉकी, समझने के लिए। आई लाइक टू प्ले हॉकी, बताएंगे, पहले तो बताएंगे लाइक टू आपका मॉडल है या नहीं। आई लाइक टू प्ले हॉकी, अभी आपका दिमाग कुछ कह रहा होगा इसमें। जब भी हम इसकी बात करते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ पर नीड्स टू हमने मॉडल ले लिया था, यूज टू मॉडल हो गया था, इज टू, एम टू, आर टू अगर आएगा वो भी मॉडल हो जाएगा। पर लाइक, लाइक टू आपका मॉडल नहीं है। हाँ, वुड लाइक होता तो मॉडल हो सकता था, जैसे आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, है ना, तो वो अलग केस था। यहाँ ध्यान देंगे, आई, मैंने बोला आई लाइक टू प्ले हॉकी, हॉकी आपका ऑब्जेक्ट है, हॉकी इज लाइक्ड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हॉकी इज लाइक्ड टू बी, मैंने इसको क्या किया, लाइक टू को मैंने वैसे ही चेंज करना चाहा, लाइक टू को मैं क्या कर देता हूँ, लाइक टू बी कर देता हूँ। क्यों किया? क्योंकि लाइक टू मॉडल नहीं होता है, पर मैं इसको एज अ एप्लीकेशन बेस्ड वर्ब के रूप में हम ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वर्ब यूज हुए हैं, लाइक और उसके बाद टू लगा है तो प्ले हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं अप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का बन रहा है और लाइक टू मॉडल होता नहीं है, बट बिहेविंग लाइक मॉडल तो हम इसको चलो उसके तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने कर लिया हॉकी, उसके बाद इज लाइक्ड टू बी, लाइक्ड टू बी प्लेड बाय, ऐसा होगा। इस चीज को लिख लीजिएगा, ऐसे सेंटेंस अगर कभी आपको देखने को मिले ना, जहां पे लगे कि मॉडल नहीं है पर लग रहा है कि हाँ बिहेविंग लाइक मॉडल, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वॉइस नहीं आ रही है मेरी?
अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या? लेट मी नो, इज माई वॉइस क्लियर? वॉइस, इज माई वॉइस क्लियर नाउ? द फुटबॉल टू बी लाइक बाई, यस दिस इज क्लियर। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा था, फिर से सुनेंगे। आई लाइक टू प्ले हॉकी बोल रहा था मैं, ठीक है, आई लाइक टू प्ले हॉकी, यस बट फॉर फार अवे, दूर से आ रही है क्या? ये नेटवर्क, नेटवर्क। आई लाइक टू प्ले हॉकी, ओके। इज माई वॉइस क्लियर नाउ? लेट मी नो, इज माई वॉइस क्लियर? यस इट्स क्लियर, ओके। आई टोल्ड दैट आई लाइक टू प्ले हॉकी। लाइक टू पहले बताएंगे मॉडल है या नहीं, यस और no? पहले इसको समझेंगे। लाइक टू मॉडल में आ सकता है क्या? एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल में भी नहीं। ये मतलब बिहेव कर रहा है, हम उसको समझेंगे। क्या ये लाइक टू मॉडल है? वुड लाइक टू अगर होता तो हम कह देते। लाइक टू मॉडल है क्या? लाइक टू प्ले, लाइक टू, कभी सुना है? मॉडल में पढ़ाया मैंने आपको, लाइक टू, राइट, यस और नो? नो इट इज नॉट अ मॉडल, यस दैट्स करेक्ट। पर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यस वर्ब तो इसने बिहेव तो किया है उसी मॉडल की तरह, जैसे यूज टू कर रहे हैं, नीड टू कर रहे हैं, किया उसी की तरह है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम समझ लेते हैं तो मॉडल नहीं है, पहली बात नहीं समझ लिया। अब मॉडल नहीं है, बिहेव कर रहा है उसकी तरह, यानी कि दो वर्ब आ गए यहाँ पर। तो हम पहले तो जाएंगे अपने सिंपल रूट के पास, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, तो हम सिंपल प्रेजेंट में जानते हैं इज एम आर का यूज करते हैं। तो हॉकी पहले हो गया आपका ऑब्जेक्ट, हॉकी के बाद इज एम आर के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा। और थर्ड फॉर्म आता है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? लाइक है, तो लाइक हो जाएगा, राइट। लाइक्ड हो जाना चाहिए, तो हमने इसको लाइक्ड कर दिया। अब टू आया है, तो हमने कहा था कि बी को सेटल करना पड़ेगा इसमें, इसके अकॉर्डिंग, तो बिहेव तो किया है इसने, मैं मॉडलिंग करनी, तो लाइक्ड टू बी हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, हॉकी इज लाइक्ड टू, इसको हमने सेटिस्फाई कर दिया, लाइक्ड कर दिया, टू बी, अब बी लगा दिया। अब क्या है? अब दूसरा वर्ब आ गया है ना, अब दूसरे वर्ब में भी पैसिव का रूल लगेगा। दूसरे वर्ब में पैसिव का रूल लगेगा, क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म प्ले का भी, तो प्लेड हो जाएगा। हॉकी इज लाइक्ड टू बी प्लेड बाय मी। वॉइस स्लो आ रही है मेरी, मैं बोल रहा हूँ हॉकी इज लाइक टू बी प्लेड बाय मी, ये हो जाएगा। हॉकी इज टू बी, सॉरी, हॉकी इज टू लाइक, अरे, हॉकी इज लाइक्ड टू बी प्लेड बाय मी, हॉकी इज लाइक्ड टू बी प्लेड बाय मी, ठीक है। ऐसे वाले केस जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे मॉडल्स नहीं होता, पर ऐसा लगता है कि हाँ मॉडल इसी तरह बिहेव कर रहा है, तो पहले जनरल वे में उसको कर दो, थर्ड फॉर्म लगा दो उसका, उसके बाद बी लगा दो टू, टू के बाद, और उसके बाद जो आगे आपका मेन वर्ब आया है उसमें भी थर्ड फॉर्म लगा दो। हॉकी इज लाइक टू बी प्लेड बाय, ठीक है, ओके। तो आज आपने यूज टू को भी सीख लिया, आज आपने मॉडल्स वाले एप्लीकेशन बेस्ड वाले सीख ली। मॉडल्स में कुछ भी हो सकता है, कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है, उन सब के आगे बी लग जाएगा, क्लियर। तो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देते जाता हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग उसको कन्वर्ट करेंगे मॉडल्स के बेस पे या फिर यूज टू वाले के बेस पे, ठीक है। तो बताइएगा, दे यूज टू eat bananas, they used to eat bananas, they used to eat bananas, बताएंगे। they used to eat bananas, do it fast everybody। मयंक जी कंफ्यूज हो गए, उन्होंने मिक्स समझ लिया इसको, वर नहीं लगेगा, यूज टू तो आपका मॉडल है ही ऑलरेडी। तो बनानाज यूज टू बी ईटन बाय them, करेक्ट, बनानाज यूज्ड टू बी ईटन बाय them, यस वेल डन। अब बताएंगे मुझे, आई कुड, आई कुड, I could shake it well. I could shake it well. I could shake, shake, it well. Okay. I could shake it well.
Third form for shake is shaken. Remember that. Shaken. Third form for shake is shaken. Shake, shook, shaken. I could shake it well. So could is modal verb here. Yes. Atul ji, Anamika ji, they have answered. Okay. A little difference is there in your answers. Let me wait for others as well. I could shake it well. Do it fast. Yes. Mini ji, Mayank ji. Shake it well. Spoke. I didn't say it is very well. Hmm. Yes. So two possible answers are being taken place. Like it could be shaken by me while you're doing this, and it could be shaken well by me. I would say both of them are correct because well is used as an adverb. Okay, so you can write it. It can be shaken well by me. That's correct. Or it could be shaken well by me. That's correct. Or it could be shaken by me well. First priority I will give to it could be shaken well by me. Okay, it could be shaken well by me. And second priority, it could be shaken by me well. Okay, and I'll let you know why did I give first priority to that. Um, First priority I gave to that because that is clearly stating the statement कि ये अच्छे से शेक किया गया था ना मिलाया गया था ना किसी चीज को मिलाना या फिर हिलाने के लिए हम शेक का यूज करते हैं ठीक है तो वहां पर आपने पहले ही उसको बोल दिया और किसके द्वारा मेरे द्वारा ठीक है तो उस सेंस में आपका आ जाता है याद रखेंगे इस चीज को इट कुड बी शेकन वेल बाय मी हमने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है और दूसरा इट कुड बी शेकन बाय मी वेल ठीक है तो आप थोड़ा ध्यान रखना तो नेचुरल साउंड करने के लिए हम क्या करेंगे इट कुड बी शेकन वेल बाय मी ये आपका जरा बेटर रहेगा ओके सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर अब बताएंगे कि किसी को कोई डाउट है यहाँ पर जो हमने पढ़ा है इसमें क्या इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज कर पाएंगे यस और नो वुड यू बी एबल टू डू द एक्सरसाइजेस ऑन द बेसिस ऑफ दीज मॉडल्स में भी और यूज टू में भी दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए इसमें विल ट्राई ओके ऑल राइट वेल डन रेट योर अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ 5 एवरीवन ये वाला आपका मीटिंग बंद हो जाएगा तो दूसरा आप ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से उसमें बताइए कितना आपको समझ में आया है आउट ऑफ 5 4 4 3 3.5 3.5 मिनी जी 5 आउट ऑफ 5 ओके I guess Mayur ji, you have been absent. That is also one of the reason. Deepa ji 4.5. Okay, okay, 4.5. Hmm. Okay, because of that. Okay, yes, yes, I understand because in the beginning you did not take the class of active and passive voice. ठीक है दूसरे लिंक से आ जाइएगा जरा दो चार बातें और करते हैं देन वी विल बी गिविंग यू होमवर्क